students, this is Vinita Singh from St. Xavier School, Nalia, and today we are going to discuss class 8, chapter number 6, combustion and the flame. Okay, so at the end of this chapter, you will be able to learn about combustion, the conditions necessary for combustion, how do we can control the fire, types of combustion, types of fuels and their calorific value, characteristics of good fuel, harmful effect of burning of fuel, and flame. Okay, so without any delay, let's start it. What is combustion? So the chemical process in which a substance react with oxygen to produce heat is called combustion. एक ऐसा chemical process जिसमें क्या होता है, कोई भी substance जो कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ऑक्सीजन से रिएक्ट करके lots of heat produce करता है, उस process को बोलते हैं combustion. Okay, and the substance which undergo combustion is called a combustible substance and it is also known as fuel. Okay, sometimes light is also produced during the combustion either as a flame or as a glow. Okay, flame की तरह भी हो सकते हैं या glow की तरह सिर्फ light glow कर रही है, ऐसा भी हो सकता है. तो combustion के टाइम पे क्या होता है, light भी produce होती है. ठीक है, air is very necessary for the combustion and you can see through this example. Okay, we just take an A, B, C and three parts of the candles. We just fix a lighted candle on a table, just put on a glass chimney over the table and rest it on a few wooden blocks. In picture number A, you can see the wooden blocks here. So the air can enter through this chimney. Below the chimney, okay, below the chimney क्या हो सकता है, एंटर कर सकती है एयर यहाँ से, अगर हमने वुडन ब्लॉक्स यहाँ पे लगाया. नेक्स्ट वाले में हम लोग क्या करेंगे, बी वाले में इसके ये जो है वुडन ब्लॉक्स जो है इनको हटा देते हैं. ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं फ्लेम को. ठीक है, थर्ड वाले में हम क्या करेंगे, उसके ऊपर एक ग्लास की जो है कवर स्लिप भी लगा देते हैं. ठीक है, उसके बाद हम लोग ऑब्जर्व करते हैं. तो तीनों में हमने क्या ऑब्जर्व किया, इन द फर्स्ट कैंडल द कैंडल बर्न फ्रीली इन ए बिकॉज एयर एंटर्स थ्रू द चिमनी फ्रॉम द बिलो, and the candle stop burning in B because air does not either enter the chimney from below. Okay, there is no space to enter the air. The candle in C portion, the candle does not burn because air is not available. So this experiment will show that the air is necessary for the burning. Okay, then ignition temperature. So the minimum temperature at which a substance catches fire and it burns is known as ignition temperature. एक वो minimum temperature जिस पे क्या होता है, कोई भी substance जो है वो fire को catch करता है या burn करना start कर देता है, उसको बोलते हैं ignition temperature. A substance will not catch fire and burn if its temperature is lower than its ignition temperature. Ignition temperature से नीचे कोई भी temperature पे कोई भी substance जो है वो अपने ignition temperature से नीचे किसी भी टेम्परेचर पे फायर को कैच नहीं कर सकता और बर्न नहीं हो सकता है. ओके, डिफरेंट सब्सटेंसेस हैव डिफरेंट इग्निशन टेम्परेचर्स, लाइक द इग्निशन टेम्परेचर ऑफ कैरोसिन इज लेस देन द इग्निशन टेम्परेचर ऑफ वुड. वुड के कंपैरिजन में कैरोसिन जो है वो इजीली बर्न हो जाता है, जल्दी बर्न हो जाता है बिकॉज ऑफ इट्स इग्निशन टेम्परेचर इज लेस देन द कंपेयर टू द वुड. ओके, सो द सब्सटेंसेस व्हिच हैव वेरी लो इग्निशन टेम्परेचर एंड कैन इजीली कैचेस फायर विद अ फ्लेम आर कॉल्ड इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस. सारे सब्सटेंसेस जो बहुत कम इग्निशन टेम्परेचर पे इजीली फायर को कैच कर लेते हैं, फ्लेम के साथ जलते हैं, तो उसको बोलते हैं इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस लाइक पेट्रोल, अल्कोहल, एलपीजी, सीएनजी एक्सेट्रा. ओके, then the conditions which are necessary for the combustion. Okay, the conditions necessary for the combustions are fuel, the most important, then the air, it's also important because the supply of oxygen is necessary. Okay, then heat also important because it raises the temperature beyond the ignition temperature. Okay, so the substance will not burn without one or more these conditions. इनमें से एक या एक से ज्यादा conditions अगर नहीं होती हैं तो क्या होता है, कोई भी substance जो है वो burn नहीं करेगा. Okay, how do we control fire? Okay, so we know that necessary conditions of the fire is fuel, air and heat, and if we remove any of one from these conditions, fuel, air and heat, if we remove any one or two from these necessary conditions, we can easily overcome or overwhelm the fire. Okay, we can easily control the fire, we can remove the fire. Okay, so fire can be controlled by removing one or more of these conditions. A fire extinguisher cut off the supply of air and brings down the temperature of the fuel and both and control the fire. Okay, fire extinguisher क्या करता है, वो air का supply
सप्लाई बंद करवा देते हैं, ठीक है। बंद कर देते हैं मीन्स क्या होता है कि वो जैसे ही हम लोग उस पर स्प्रे करते हैं फायर एक्सटिंग्विशर, वो क्या करता है, क्योंकि वो एयर से ज्यादा हैवी होता है, वो क्या करेगा, बर्निंग मटेरियल जो है उसके चारों तरफ अपनी एक एयर वो लेयर बना लेगा। जैसे वो लेयर बना लेगा इट मीन्स क्या होगा, उसका एयर से जो कनेक्शन था, कनेक्ट था, ऑक्सीजन जो रेगुलरली उसको सप्लाई हो रही थी वो सप्लाई होना बंद हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, फायर जो है वो बंद हो जाएगी। ओके, So the methods for using for controlling fire है by using water. Okay, आपने कभी भी देखा होगा कहीं भी आसपास में आग लग जाती है, लोग बाल्टी लेके चल देते हैं कि हाँ चलो आग बुझानी है ये वो, but water is a most common fire extinguisher, but it is used only when material like wood and paper etc are on burn. Okay, जब भी कोई wood paper ऐसे burning होती है उसी टाइम पे हमें ये water का use करना है as a fire extinguisher. बट अगर किसी के इलेक्ट्रिकल अप्लायंस में if the fire be on electrical equipment, we are not using the water because we know that water conduct electricity, it can harm those who are trying to put off the fire. Okay, so we are not using the water where the electrical equipments are on burn. Okay, the fire was on electrical equipment, we are not using water there, and we are also not using water where there the fire is on oil or petrol causing material. Okay, अगर ऑयल या पेट्रोल कॉजिंग मटेरियल पे क्या होता है, फायर होती है, तो उस टाइम पे भी हम लोग वाटर का यूज नहीं करते बिकॉज वी नो द ऑयल इज फ्लोट ऑन द वाटर. ओके, एंड इफ वी आर कंटिन्यूअसली गिविंग वाटर, लॉट्स ऑफ वाटर वी आर प्रिटेंडिंग देयर, बट दे आर कंटिन्यूअसली फायरिंग बिकॉज क्यों होता है, क्योंकि वहां पे क्या होता है, कंटिन्यूअसली वो बर्न करता ही रहेगा, क्योंकि ऑयल जो है, ऑयल के लेयर्स पे वाटर क्या होती है, वो फ्लोट करती रहती है, उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ा है, उसका कोई कनेक्शन नहीं टूटा है, कनेक्ट नहीं हुआ, वो कनेक्शन कहीं से टूटा ही नहीं है, तो वो क्या करेगा, वो रेगुलरली बर्न करता रहेगा, तो कोई मतलब नहीं होता है. सो वी कैन यूज द वाटर एज एन फायर एक्सटिंग्विशर व्हेन द फायर इज ऑन द मटेरियल लाइक वुड एंड पेपर. ओके, वी आर नॉट यूजिंग वाटर एज अ फायर एक्सटिंग्विशर व्हेन द fire is on electrical equipment or fire will be caused by any oil and petrol fires. Okay, we are not using water there. Then by using carbon dioxide से, तो we know that the best extinguisher is carbon dioxide. Okay, for the inflammable material like oils and petrols and electrical equipments, जिनमें हम water का use नहीं कर सकते, वहां पे हम carbon dioxide का use कर सकते हैं. We know that the carbon dioxide is heavier than the air. Air means अपने जो ऑक्सीजन लेवल होता है, ठीक है, ऑक्सीजन से ज्यादा हैवी होती है कार्बन डाइऑक्साइड, तो उसको क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो हैवी होती है एयर के कंपेयर, तो इसको क्या करती है, जैसे हम लोग उस पर स्प्रे करते हैं तो ये क्या करती है, फायर के चारों तरफ क्या करती है, अपनी लेयर बना लेती है, जिसकी वजह से सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन जो है वो पुट आउट कट हो जाता है, जिसकी वजह से फायर जो है वो पुट आउट हो जाती है. ठीक है, carbon dioxide is stored at high pressure as liquid in cylinders. Chemicals like sodium bicarbonate, commonly known as baking soda, and potassium bicarbonate produce carbon dioxide near the fire. Okay, ये produce करते हैं. Then types of combustion. So there are three types of combustion: rapid, spontaneous, and explosion combustion. Okay, rapid combustion means the combustion in which substance burn rapidly and produce heat and light with the help of external heat, like LPG. अपन जैसे गैस वैस ऑन करते हैं तो जैसे क्या होता है, जैसे ही इसको सब्सटेंस जैसे कांटेक्ट में आता है ना, एक्सटर्नल हीट देते हैं, ये रैपिडली क्या होता है, बर्न करना शुरू कर देता है, बहुत सारी हीट एंड लाइट प्रोड्यूस होती है इसमें. स्पॉन्टेनियस कंबशन का मतलब होता है ये सब्सटेंस बर्न स्पॉन्टेनियसली बर्न करना शुरू कर देगा, प्रोड्यूस कर देगा लॉट्स ऑफ लाइट एंड हीट विदाउट द हेल्प ऑफ एक्सटर्नल हीट. ठीक है, एक्सटर्नली हमने उसमें कोई हीट नहीं दिया, उसके बावजूद भी वो बर्न कर रहा है बाय गेटिंग द मॉइस्चर फ्रॉम द एनवायरमेंट. ओके, तो ऐसा होता है, फॉस्फोरस हो गया, अपना सोडियम हो गया, ये बहुत इजीली बर्न हो जाता है, स्पॉन्टेनियसली अचानक से बर्न हो जाता है रूम टेम्परेचर पे. थोड़ा सा भी मॉइस्चर मिलेगा, थोड़ा सा भी हीट इंक्रीज हो गया मतलब अपने एयर में, तो वो हीट इंक्रीज हो गया मतलब अपने एयर में, तो वो क्या होता है, बर्न करना शुरू करते हैं, स्पॉन्टेनियसली बर्न हो जाते हैं. लेकिन इसीलिए इनको क्या करते हैं कि केमिकल्स जो अपनी लैब्स होती है, केमिकल लैब्स, उनमें इनको क्या किया जाता है, कैरोसिन के अंदर स्टोर करके रखा जाता है. ठीक है, एक्सप्लोजन मीन्स होता है कंबशन इन विच अ सब्सटेंस बर्न सडनली एंड प्रोड्यूस हीट, लाइट एंड साउंड विद द हेल्प ऑफ ए हीट और प्रेशर. ओके, कंबशन एक्सप्लोजन में क्या होगा कि सडनली इसमें बहुत ज्यादा हीट और प्रेशर के साथ में क्या होता है, बहुत सारी हीट, लाइट, लॉट्स ऑफ हीट, लॉट्स ऑफ लाइट, लॉट्स ऑफ साउंड प्रोड्यूस होता है, लाइक क्रैकर्स जो एक्सप्लोज होते हैं, ठीक है, उनमें बहुत सारी हीट एंड प्रेशर अप्लाई करने से. ठीक है, आप देख सकते हो उनकी फ्लेम्स. रैपिड कंबशन किस तरीके से दिखाते हैं, स्पॉन्टेनियस जो अचानक से चलता है, एक्सप्लोजन ये तो बहुत सारा आपने दिवाली पे देखा ही है. ठीक है,
Then types of fuels. So there are three main types of fuels: solid, liquid, and gas. Solid fuels like wood, coal, charcoal. Liquid like kerosene, petrol, diesel. Gaseous like CNG, LPG, biogas, hydrogen, etc. Then the calorific value. What's the calorific value? So the amount of heat energy produced on a complete combustion of 1 kg of fuel is known as calorific value of fuel. ओके, किसी एक अमाउंट ऑफ हीट, एक हीट एनर्जी जो अमाउंट जो प्रोड्यूस होती है कंप्लीट 1 केजी फ्यूल के कंप्लीट कंबशन से, जो हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है उसको बोलते हैं कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल. ठीक है, पूछ लिया जाता है काफी बार कि हाँ सबसे ज्यादा कैलोरीफिक वैल्यू किसकी है, या फिर केरोसिन की कितनी है, मीथेन की कितनी है, सीएनजी एलपीजी की कितनी है, तो ये पूछ लिया जाता है. तो थोड़ा सा इनको ओवर व्यू करके जाना एग्जाम में. ठीक है, सो तो कार्बन केक जो है उसका क्या होता है, एंड इसको कैलोरीफिक वैल्यू को किससे एक्सप्रेस करते हैं, किलो जूल पर केजी से. ओके, कार्बन केक का 6000 to 8000 किलो जूल पर केजी होता है. हाइड्रोजन का सबसे हाईएस्ट है, सीएनजी का 50,000, एलपीजी का 55,000, मीथेन का 50,000 है. ओके, डीजल 45,000 है, कैरोसिन, पेट्रोल एंड डीजल तीनों का 45,000 है. ओके, अंडरस्टूड. तो इसी तरीके से कैलोरीफिक वैल्यूज हम लोग देखते हैं. सो व्हाट्स द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए गुड फ्यूल? सो द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए गुड फ्यूल्स आर, इट्स रेडिली अवेलेबल, इजिली अवेलेबल होना चाहिए, इज इट चीप होना चाहिए, वो बहुत ज्यादा सस्ता होना चाहिए, इट कैन इजिली बी स्टोर, इट कैन इजिली फॉर ट्रांसपोर्ट, इट कैन इजी फॉर ट्रांसपोर्ट ऑल्सो, इट कैन बर्न एट द मॉडरेट रेट, इट कैन प्रोड्यूस अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, इट डज नॉट लीव बिहाइंड एनी अनडिजायरेबल सब्सटेंस. अनडिजायरेबल मीन्स जिसको डिकम्पोज करना ही मुश्किल हो जाए. ठीक है, तो इट डज नॉट लीव बिहाइंड एनी अनडिजायरेबल सब्सटेंस, डज नॉट कॉज एनी पॉल्यूशन टू आवर एयर. ओके, तो मतलब एनवायरमेंट को कॉज भी नहीं होना चाहिए. तो ऐसा होता है गुड फ्यूल. हार्मफुल इफेक्ट्स क्या होते हैं? हार्मफुल इफेक्ट्स मींस फ्यूल्स लाइक वुड, कॉयल, पेट्रोलियम, ये रिलीज करते हैं क्या, अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स. ओके, जो क्या कर सकते हैं, हमारे रेस्पिरेटरी डिजीज लाइक अस्थमा वगैरह जो है वो इन्हीं से होती है. ठीक है, इनकम्प्लीट कंबशन अगर होता है किसी भी फ्यूल का तो उससे रिलीज होता है कार्बन मोनोऑक्साइड. ठीक है, CO, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस रिलीज होती है जो कि बहुत ज्यादा पॉइजनस गैस होती है, जिसकी वजह से इवन इट कैन कॉज अ डेथ. ओके, burning of the most fuels release a carbon dioxide gas which causes a rise in the temperature of the atmosphere. This is called global warming and it causes a melting of polar ice, rise in sea level, flooding of coastal areas. Okay, mostly जो fuels होते हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं वो टेम्परेचर बढ़ सकता है उनका एटमॉस्फेयर में, तो कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ जाता है जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग होती है. एंड ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्या क्या कॉज होंगे अपने एनवायरमेंट को, पोलर आइस जो है वो मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगी, सी लेवल का राइज मतलब राइज हो जाएगा, सी लेवल बढ़ जाएगा, फ्लडिंग होना शुरू हो जाएगी कोस्टल एरियाज में. ठीक है, देन बर्निंग ऑफ द कोल एंड पेट्रोलियम जो है जो रिलीज करते हैं क्या, सल्फर एंड नाइट्रोजन, जो कि अगर रेन वाटर में डिजोल्व हो जाते हैं तो वो एसिड रेन का काम करेंगे जिसकी वजह से क्रॉप, सॉइल एंड बहुत सारे बिल्डिंग्स जो है वो क्या हो सकती हैं, डैमेज भी हो सकती हैं. उसके बाद में आता है फ्लेम. फ्लेम क्या होता है? सो combustible substance, those who can at their ignition temperature they can burn easily, वो होते हैं combustible substance. जो combustible substance burn हो जाते हैं वो process होती है combustion. और flame क्या है? flame is the zone of combustion of a combustible substance. ठीक है, एक zone होता है combustion का combustible substances में. okay, तो substance which can vaporize during the burning, it produce a flames like example kerosene and wax. okay, मोमबत्ती हो गया, अपना केरोसिन हो गया, तो ये वेपराइज होते हैं बर्निंग के दौरान, तो इसलिए ये क्या प्रोड्यूस करते हैं, फ्लेम प्रोड्यूस करते हैं. एंड दो सब्सटेंसेस व्हिच डू नॉट vaporize during burning, they do not produce flame. Example, coal and charcoal. okay, then the structure of candle flame. So there are three main zone: outer, middle and inner. okay, सो द आउटर जोन, काफी बार ये फ्लेम के बारे में क्वेश्चन आ चुका है तो ध्यान से पढ़िएगा. आउटर जोन जो होता है वहां पे होता है क्या, कंप्लीट कंबशन. किस टाइप का कंबशन होता है? कंप्लीट कंबशन ऑफ द फ्यूल्स टेक प्लेस एंड द कलर ऑफ द फ्लेम इज ब्लू एंड इट इज द हॉटेस्ट पार्ट ऑफ द फ्लेम. ओके, एंड इट इज द नॉन ल्यूमिनियस पार्ट ऑफ द फ्लेम. ओके, एंड द मिडल जोन इज अ partial combustion of the fuel and it take place and the color of the flame is yellow and it's moderately hot part of the flame and
it is luminous part of the flame. Okay, and in the inner zone there are unburnt vapor of the fuel and the color is black and is least hot part. Okay, समझ में आ गया? यहाँ पे hot मतलब बहुत कम ही मतलब ये hot होता है, hot नहीं होता है, लेकिन ये black color का होता है, wax part होता है इसका, vapor जो होते हैं fuels के वो यहीं पे होते हैं inner zone में, middle zone में partial combustion होता है, outer zone में complete combustion होता है. Understood? ये diagram भी काफी बार पूछ लिया जाता है. So that's all in your chapter. If you like my video, please share and subscribe my channel, Vinita Shekhawat. Thank you so much.